बच्चों, today I will explain you quadrilateral types and polygon. So in this first is I will tell you some types of curves. Curves means this type of any line which is not straight. Curve means a line which is not straight. Any line that can be a curve, this type. Okay, this type. Any figure which is not straight are called curves. So first is simple closed curve. Simple closed curve are types of like simply close, this type. This type. You can make any type, but the end of these two should be joined. Then non-simple, like this type. Non-simple curve intersect at any point, like these terms, like this one, this one, this one. This one is closed, but they intersect at one point. So this is non-simple closed. Now the simple open. Simple open means any curve that are not joined. You can make this that are not joined. This is open. Two end of this curve is open. And non-simple open. Non-simple open means like same but this type. They are intersecting at one point, but in the last they are not joined together. Okay, you can make this way. This is non-simple open curve. Okay. Your next topic, what is quadrilateral? Quadrilateral, quad means four. Quad means four and lateral means four sides. Lateral means four sides. So any figure which having four sides are called quadrilateral. It can be this, it can be any figure which having four sides. It can be a rectangle, it can be a square, it can be a rhombus. Any figure which having four sides are called quadrilateral. Now types of quadrilateral. Quadrilateral are many types. These are the types of quadrilateral. In these types of quadrilateral, one thing is common. They all have four sides and now first one is parallelogram. Parallelogram having two sides are parallel, like A, B, C, D. Here AB parallel CD and BC parallel AD. AB parallel CD and BC parallel AD. And they are equal also. AB equal to CD and BC equal to AD. These are the properties of parallelogram. Parallelogram are also rectangle, rhombus and square. Square having all sides parallel and their interior angle are 90 degree. These angles are 90 degree and all sides are equal. Rectangle also having interior angle 90 degree, but these four sides are not equal. Only the opposite side. This side equal and this side equal this side. Rhombus also having all equal sides. Now the kite. Kite, you know, this type figure. This is just little bit longer. This type figure is kite. Their opposite angle are equal. Okay. Now the kite is also one type, arrowhead. Arrowhead this type. Arrowhead. Now the trapezium. Trapezium also to one type, isosceles trapezium. Isosceles trapezium means if the this is trapezium ABCD.
if these two non-parallel sides are equal, AD equal BC, then this type of trapezium is known as isosceles trapezium. So these are the types of quadrilateral. Sum of interior angle of polygon. Like there is so many, I have took 4 polygon. इनके इंटीरियर एंगल का हमें सम निकालना है. इंटीरियर पोर्शन मींस दिस पोर्शन. ये जो एंगल बन रहे हैं सारे, इनका टोटल सम कितना होगा? ये जो एंगल बन रहे हैं, इनका टोटल सम कितना होगा? तो बच्चों ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180. n होता है नंबर ऑफ साइड. सो ट्रायंगल का निकाल लेते हैं. देखो फॉर्मूला n-2. n हमारा कितना है? 3 साइड होता है. 3 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 1 इंटू 180. 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री. तो ट्रायंगल के तीनों जो एंगल है उनका सम कितना होता है? 180. स्क्वायर का निकाल लेते हैं. स्क्वायर की साइड होती है 4. सो दिस इज 4 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 4 - 2 इंटू 180 इक्वल टू 2. 18 2 36. सो दिस इज योर 360. तो क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360. नाउ द पेंटागन 5 - 2 इंटू 180. 5 - 2 इक्वल टू 3 इंटू 180 इक्वल टू 18 3 54. सो पेंटागन कोई भी फिगर हो, अगर उसकी 5 साइड हैं तो उसके इंटीरियर एंगल का सम होगा 540. नाउ द हेक्सागन होता है 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 6 - 2 4 इंटू 180. 18 4 72. सो दिस इज हेक्सागन के एंगल का सम होगा 72. तो बच्चों ऐसे ही आप हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन सभी का निकाल सकते हैं. आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है n-2 इंटू 180. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स. अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन गिवन है, उसके हमको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने, तो कैसे करेंगे? देखो बच्चों, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n-3/2. ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स का. n होता है हमारा नंबर ऑफ साइड. तो निकाल लेते हैं. देखो एक एक करके. सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्मूला होता है n-3/2 इक्वल. n होता है नंबर ऑफ साइड. तो ट्रायंगल का साइड होता है 3. 3 मल्टीप्लाई 3 - 3/2. 3 इंटू 3 - 3 0/2. सो दिस इज 0. तो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता. फिर आता है स्क्वायर. तो स्क्वायर में देखो बच्चों, डायगोनल एक्चुअल में होता क्या है? जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इससे अगले वाले पॉइंट को छोड़ के उससे अगले वाले पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे. फिर इसको हम इससे ज्वाइन कर सकते हैं. इस वाले पॉइंट को इससे अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो तो साइड बन जाएगा. ठीक है. तो इसके 2 डायगोनल होते हैं. तो देख लेते हैं फॉर्मूले से सही आ रहा है या नहीं. तो n हो जाएगा 4 - 3/2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 2 इंटू 4 - 3 1. 2 1 जा 2. तो कितने डायगोनल आ जाएंगे? 2. ऐसे ही पेंटागन का आप निकाल लेंगे. पेंटागन 5 - 3/2. 5 - 3 2/2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. कितना आ जाएगा? 5. तो पेंटागन के कितने होते हैं? 5. ऐसे ही मान लो अगर कोई पॉलीगॉन है जिसका साइड है 20. कितना साइड है? 20. तो उसका भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे n-3/2. नाउ द नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन. बच्चों देखो, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन कैसे होता है. सबसे पहले आप समझो, मान लो ये कोई लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन पे ये जो एंगल बनता है ये होता है 180. ठीक है. अगर ये लाइन ऐसे और ऐसे है तो ये एंगल हमेशा होगा लेस देन 180. और अगर ये लाइन ऐसे और फिर ऐसे हो जाती है तब ये एंगल होगा
मोर देन 180। तो कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर मोर देन 180 एंगल है तो वो होता है कॉनकेव, और कोई भी ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर लेस देन 180 डिग्री के सारे एंगल होते हैं वो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखो ये जो पॉलीगॉन है इनके जो एंगल है इंटीरियर एंगल ये सब 180 से कम है, ये सारे एंगल 180 से कम है। और ये देखो यहां देखो ये तो 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, बट ये एंगल ये लाइन ऐसी लाइन है देखो, ठीक है ऐसी लाइन है तो ये मोर देन 180 है तो इसलिए कॉनकेव है। ये देखो यहां पर 180 से ज्यादा है तो ये कॉनकेव, दिस इज ऑल्सो कॉनकेव। तो आपको फिगर देखना है, अगर कोई ऐसी लाइन है जहां पर एंगल मोर देन 180 बन रहा है तो वो कॉनकेव हो जाएगा, और जिस फिगर में सारे ही एंगल लेस देन 180 होंगे तो वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में आपको ध्यान रखना है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सारी साइड बराबर होंगी, सारे ही एंगल बराबर होंगे। जैसे मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं और सारे ही एंगल 90 डिग्री होते हैं तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ऐसे ही मान लो ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल जिसमें तीनों साइड बराबर हो, ए बी इक्वल बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड बराबर हो। इसमें तीनों एंगल होते हैं 60 डिग्री और सभी साइड बराबर होती हैं तो ये रेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा फिगर जिसके अंदर सभी साइड बराबर हो, सभी एंगल बराबर हो, उसको हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन।